Good morning. Next, we will draw the molecular orbital diagram of N2 and its related species. So, now we are going to draw the structure of first N2. In N2, we have two nitrogen atoms. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. खोल के लिख लिया मैंने p को, 2p3 भी लिख सकते थे. Second also 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. So what will happen in this case is the 1s of nitrogen, this nitrogen that overlap with the 1s of this, 2s of this overlap with 2s of this, means all the orbitals they overlap, not only valence. Okay, उसका 1s उस दूसरे के 1s के साथ, उसका 2s दूसरे 2s के साथ. तो ये दो atomic orbitals हैं. When they overlap, they give two molecular orbital. One is sigma 1s. Second is sigma star 1s. ये दो है 2s, तो they will also give two molecular orbital. One is sigma 2s, second is sigma star 2s. Like that. These px, px, py, py, they give pi. They form the pi bond, and this pz, pz again form the sigma bond. So this is the molecular diagram. So I am drawing here energy. 1s नहीं हम करेंगे draw. मैंने बता दिया था कि 1s को हम डायरेक्ट लिख लेंगे सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2. तो शुरू करेंगे. तो ये हमारा हो जाता है भाई इसका 2s और ये इस नाइट्रोजन का 2s और उसके बाद आ जाता है इसका 2p और इसके बिल्कुल सामने इसका 2p. तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. ये मिलके क्या बनाएंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वन अबव एंड वन बिलो, लाइक दिस. ये 6 टोटल, तो 6 ही बनाएंगे, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, 1 ये नीचे उनके, है ना, और 2, 1. अब इनका नाम लिख दे. ये अंदर जो है ये सारे क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसका नाम हो जाएगा भाई सिग्मा 1s, सॉरी 2s, सिग्मा स्टार 2s. दिस वन इज पाई 2px, दिस वन इज पाई 2py. दिस अपर वन इज सिग्मा 2pz. These three are bonding. So इनको अटैच करने हैं ऐसे. These are anti-bonding. Upper one. This is pi star 2px, बस star लगाना होता है. Pi star 2py, and this is sigma star 2pz. Now we will fill the electron. First in the atomic orbitals. See here, we have 2 electrons. Here we have 3 electrons. Then we have 2. And we have 3. Now we will fill the electron in the molecular orbitals. So there are 2 plus 2 4. तो 2 इसमें जाएंगे भाई, 2 इसमें जाएंगे. Now there are, sorry, this line is wrongly marked like this. Okay, now there are 6 electrons total. So first one will be here. Second, by following Hund's rule, we must fill the electron like that. 3, 4, 5, 6, like this. So now we can easily write the configuration of N2. तो फर्स्ट हमने यहाँ पे छोड़ दिया था 1s 1s. उसको आप लिख सकते हो सिग्मा. उसको आप लिखोगे सिग्मा 1s2
सिग्मा स्टार 1s, यहाँ उसको हम लिख लेते हैं के मतलब फर्स्ट शेल. After that we will move to this sigma 2s to sigma star 2s to pi 2px to pi 2px equal to pi 2py2 and sigma 2pz2. See, there is equal sign between pi 2px and pi 2py because they have the same energy. You can see here they have the same energy. That's why equal sign is there. Otherwise, energy is increasing from left to right. Okay. What to do next is to calculate bond order. क्या था bond order भाई? Number of electrons in bonding, number of electrons in anti-bonding divided by 2. See how many electrons are there. You can exempt this 2s also because 2 cancel out. Just concentrate on P only to find the bond order. So there are 6 electrons here you can see in red. Bonding. In anti-bonding no electron. So you can directly write 6 minus 0 by 2, 3. 3 means nitrogen have triple bond as you know. Now next there are other species also like N2 positive, okay, N2 negative and N2 2 negative. So we will write the configuration directly. You just try to make a fast because in MCQ there is not too much time to draw this structure. So what to do, just draw the, like if you want to draw this for N2 positive, just draw it like this. This is sigma 2s, these orbitals. Just draw it. Keep in mind. Okay, so this is sigma 2s, sigma star 2s, pi 2px, pi 2py, sigma 2pz, pi star 2px, pi star 2py, sigma star. Like this, compare it. And fill the electron. How many electrons are there now? N2 positive. N have 7 electrons. Positive means 7 plus 7. 14, so it has 13 electrons. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई 14. तो 14 में से 4 तो चले गए वनएस में है ना. उसके बाद आ जाता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ओके 4 तो चले गए वनएस के में के वाले 4 निकाल दिए इसमें से निकाल दिए तो कितने बचे पीछे 9. 9. अब 9 फिल करेंगे. देखा 2 here, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Easy? You can directly find the bond order. There are 5. There are 6 थे. अब कितने हो गए 5. So bond order of this in this case is 5 minus 0 by 2, 2.5. Same you can do for N2 negative, है ना? This is just keep in mind all the things, है ना? तो N2 negative has 15 electron. तो 4 minus कर दो 11 बचे. अब हम 11 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So one goes in anti-bonding. These are bonding. These 3 are anti-bonding. Okay. So 6 minus 1 by 2. 5 by 2. Again 2.5. Next is N2 2 negative. N2 2 negative has 16 electron. तो 4 तो चले गए. Let's again draw this. Okay. 1, 2, 2, 1, 2, 1. 4 चले गए तो कितने बच गए पीछे 12. तो fill the 12 electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12. To unpair, not putting 1 because Hund's rule say when while filling the electron, this is the same energy. First दोनों को एक एक देना है, after that pairing start. तो भाई बॉन्डिंग में कितने इसके 6 और एंटी बॉन्डिंग में 2. देख रहे हो आप? तो बॉन्डिंग में तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है इसका 6 minus 2 by 2 4 by 2 2. सो चारों के बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर लिए. तो इस पे जो क्वेश्चन आता है आउट ऑफ दीज 4 स्पीशीज वी हैव टू अरेंज देम. हमें डायग्राम हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सीक्वेंस दिमाग में रखना है. ठीक है, तो N2 था, N2 पॉजिटिव था, N2 नेगेटिव था, N2 2 नेगेटिव था. तो इनके जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं 3, 2.5, 2.5 एंड 2. अब अगर बोल रहा है कि इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी N2 की, और उसके बाद हो जाएगी N2 पॉजिटिव एंड ना N2 नेगेटिव लगा लो, उसके बाद आ जाएगा N2 2 नेगेटिव. 2.5 ऑर्डर 1.5 bond order means the bond strength is in between 2 and 3. It's stronger than double bond but weaker than triple bond. This 2.5 does not mean that there is 1/2 bond. That's not possible. 2.5 means strength is in between. Generally they ask to arrange them according to stability. So stability depends upon bond order. So N2 has a more stable. In the second, when the bond order is same, what we will see the electron in anti-bonding. See here, this is N2 positive, there is one anti-bonding. Here is N2 negative, there are two anti-bonding. So which is, in this case, this one anti-bonding, here is no anti-bonding. You can see this is bonding. No anti-bonding in N2 positive, one anti-bonding in N2 negative. It means N2 positive is stable. Then N2 negative and then N2 2 negative. This is the stability order. So this is about the molecular orbital diagram of nitrogen. This is molecular orbital diagram of O2. Okay. So for O2 we will take 2 oxygen. The configuration of first one is 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. And the second one is same, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1, 2pz1. Like that. So let's draw in this case also we will not draw the for 1s, that is we will write it kk. The rest are, we have oxygen this side, and we get O2 by the combination. Let's start with 2s. This is the 2s of this oxygen, 2s of this oxygen, take 2p, and then here is a 2p. Fill the electrons. In 2s we have 2 for this, 2 for this. In this case we have 4 like this. Now these 2s orbitals, they form one bonding molecular orbital sigma 2s and one anti-bonding molecular orbital sigma star 2s. Okay, like that. This is bonding, this is anti-bonding. So electrons are 4, just put 2 in this and 2 in this. That's all. Now here is some differences from oxygen. Like here we put the sigma 2s
below the pi 2px and pi 2py in bonding only. This is your pi 2px, this is your pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. So this sequence is changed. That you have to memorize. इसका रीजन है, रीजन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना याद रखना इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस. रीजन आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो पूछेंगे ही पूछेंगे. ठीक है, कि इसमें दोनों ने एक दूसरे को स्वैप क्यों कर दिया. उसमें 2p पाई 2px पाई 2py नीचे था, इसमें वो सिग्मा 2s के ऊपर चला गया. तो इसका रीजन क्या होता है कि जब एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो ये जो डिफरेंस है, दिस इज बेसिकली, अगर कोई पूछ ले तो आप लिखोगे दैट इज ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल. इंटरमिक्सिंग ऐसी कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम हो जाता है फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, मतलब इसके बाद, ऑक्सीजन के बाद. जब डिफरेंस इतना कम हो गया दैट ये दोनों एक दूसरे को होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, इफ यू डोंट कंसीडर एनीथिंग, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो सिग्मा स्टार 2pz में रिपल्शन भी उतनी ज्यादा होगी जितनी उसमें अट्रैक्शन होगी. तो सही सीक्वेंस यही है, सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी सबसे, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओवरलैपिंग इज मोर इन सिग्मा. तो अगर उसमें ट्रैक्शन ज्यादा है तो रिपल्शन भी ज्यादा होगी. तो अगर उसके बॉन्डिंग की एनर्जी कम है तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी. तो ये सीक्वेंस सही होना चाहिए, मतलब पाई 2px, सिग्मा 2pz नीचे, सिग्मा स्टार 2pz ऊपर. ठीक है, तो जो ऑर्बिटल्स जब हम जितने भी करके आए हैं नाइट्रोजन तक, उसमें क्या था, ये गैप कम, उसमें इंटरमिक्सिंग होती है. तो इसमें और इसमें हो जाती है रिपल्शन, दे कम क्लोज. आप ऑक्सीजन के बाद दे मूव अपार्ट, है ना. तो देयर इज मिक्सिंग ऑफ दीज टू ऑर्बिटल एंड देन दीज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे रिपेल. ये सिग्मा स्टार 2s एंड सिग्मा 2pz दे रिपेल. ये ऐसे रिपेल करेंगे, ये तो थोड़ा सा नीचे आएगा और ये इतना रिपेल हो जाएगा कि ये इनके ऊपर यहां चला जाएगा. किसमें, जिनके एटॉमिक नंबर लोअर है, कम है. तो लोअर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट है, उनमें इंटरमिक्सिंग होती है 2p और 2s ऑर्बिटल की, जिसकी वजह से देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस दे इंटरचेंज. दैट्स ऑल. बट रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट मेमोराइज द सीक्वेंस while writing because everything depends upon the configuration in case of molecular orbitals. Okay, now fill the electrons. So there are total 8 electrons, 4 इसमें है, 4 इसमें. तो how to fill 8 electrons? 1 2 3 4 5 6 7 8. So if you write the configuration of O2, you can write it Kk, then we have sigma 2s2, then we have sigma star 2s2, then we have sigma 2pz2, then we have pi 2px2 equal to pi 2py2, then we have pi star 2px1 equal to pi star 2py1. That's it. That's the electronic configuration of N2O2. Now to find the bond order, bonding 6, anti-bonding 2, to 6 minus 2 by 2, 4 by 2 means 2, so there is double bond between 2 oxygen atoms. We know. Okay, so you just memorize the sequence, like up to 14 electron, like nitrogen, we have 2 1 2 1, means नीचे भी 2 ऑर्बिटल, उसके बाद 1 फिर 2 फिर 1, ये तो सेम ही रहेगा. And after nitrogen we have 1 2 2 1. Just memorize this.
Okay, for this oxygen, then we made configuration of O2 positive, O2 negative, O2 2 negative. Now, how to draw in your mind the molecular orbital diagram? Like this is sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px, pi 2py, pi star 2px, pi star 2py, sigma star 2pz. Simple. Let's compare it with this. एक लाइन है सिग्मा 2s की, उसके बाद लाइन है सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद लाइन आ जाती है पाई 2 की सिग्मा 2 की z की, उसके बाद दो लाइंस आएंगी थोड़ा डिस्टेंस पे पैरेलल, वन इज फॉर पाई 2 की x, सेकंड इज फॉर पाई 2 की y. उसके बाद ये दो लाइंस आ गई ऊपर, तो ये तीन ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग में हो गए, ये बॉन्डिंग में हो गए. इसके बेस पे हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देना. तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं O2 पॉजिटिव में? O में इलेक्ट्रॉन 8, 16, 15 हो गए. तो 15 में से 4 तो गए के में, तो 11 बचे. we have to fill the 11 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, you can write the configuration same as that. बस इसको नहीं लिखना, यहां तक आ जाएगी. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ इसका भाई? बॉन्डिंग में कितने नजर आ रहे हैं इसमें? ध्यान से देखो तो ये आपका बॉन्डिंग हो गया, ये आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया. तो बॉन्डिंग में 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है. तो हम लिख देंगे 6 माइनस 1 बाई 2, 5 बाई 2 इट्स 2.5. Okay, move to negative. Now we have 17 electron. Same again, sigma s, sigma 2s, sigma star 2s, 2pz, this. So 17 में से 4 गए के में, बचे कितने? 13. 13 को हमने फिल करना है, तो राइट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ओके, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया. तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. तो ये है बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग. तो 6 माइनस 3 बाई 2 इट्स 1.5. O2 2 negative, 18 electron. So then this. So you will get 18 electron. 18 में से 4 गए 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. See, bonding 6, एंटी बॉन्डिंग ओनली 4. तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा? 6 माइनस 4 बाई 2, 2 बाई 2, 1. अब इस केस में क्या हुआ कि बॉन्ड ऑर्डर सबका डिफरेंट है. तो आप इन चारों को इसके बेस पे, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ कैसे भी अरेंज कर सकते हो. तो अगर सिर्फ स्टेबिलिटी लिखें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी भाई O2 पॉजिटिव की, उसके बाद आ जाएगा भाई O2, उसके बाद आ जाएगा भाई O2 नेगेटिव, और उसके बाद आ जाएगा 2 नेगेटिव. यू कैन सी दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो ये कॉन्फ़िगरेशन. अब इसमें से एक चीज और भी है जो हम पता कर सकते हैं, वो है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर. पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे पता चलता है? पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं होता. तो सीधी सी बात है, अगर आप देखो यहां से, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, नजर आ रहे साफ ना. तो ये हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक. O2
पॉजिटिव, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नजर आ रहा है, ये भी पैरा। O2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, ये भी पैरा। O2 नेगेटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक। तो ऐसे हम नाइट्रोजन के केस में भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जो है वो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स फॉर हेटेरोएटम्स। जैसे ये था हमारा होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोटॉमिक मींस सेम टाइप ऑफ एटम। आप इसमें से फ्लोरीन की भी बना सकते हो, नियोन की भी बनाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, नोबल गैस है। अगर आपको वो कॉन्फ़िगरेशन दे दे Bn, है ना, NO प्लस CO प्लस, तो इनको बोलते हैं हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इनकी कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए अगर मान लो पूछ लेता है बॉन्ड ऑर्डर CO का, तो CO का थोड़ा सा केस एक्सेप्शनल है, बाकी वैसे ही चलेंगे। अगर देखो इसमें नाइट्रोजन है तो इसमें जो सीक्वेंस फॉलो होगा, है ना, जैसे मान लो मैं इसमें कर रहा हूं, इसमें होगा फॉलो आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, I2px, ऐसे मतलब 2 1 2 1 वाला। और इलेक्ट्रॉन आप इसमें काउंट कर लो, बोरोन में 5 और नाइट्रोजन में 7, 12 में से 4 तो गए, 8 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देख रहे हो ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, BMO ABMO। तो यहां से आप इसका बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा 4 - 0/2 2। अगर NO का निकालना है आपने या NO पॉजिटिव का, इसके लिए आप ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस फॉलो करेंगे। कैसे? सिग्मा 1s, ये देखिए इसमें डिफरेंस है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, N में 7 और ऑक्सीजन में 8, 15 हो गए टोटल। 15 में से 4 गए 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें देखिए ये बॉन्डिंग का पोर्शन है और ये एंटी बॉन्डिंग का पोर्शन है। देखिए इसमें चेंज है, यहाँ 2 नीचे, एक ऊपर, यहाँ एक नीचे 2 ऊपर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गया। इलेक्ट्रॉन 15 हो गए, उसमें भी ऑक्सीजन आ गया। तो इसमें ये ध्यान रखना है, Bn में ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें हम नाइट्रोजन वाला फॉलो करेंगे। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या आ जाएगा भाई, 6 - 1/2, तो 2.5। NO पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव में ये उड़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये खत्म। तो NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 6 - 0/2 3। CO का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ये CO दोनों मिलके बनाएंगे CO। तो इसकी जो बिहेवियर है CO का, ये आपको +2 में भी काम आएगा। इसका जो डायग्राम ध्यान से करना है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। पहली बात तो जब आप ड्रॉ करोगे, आप देखते हो दोनों एटम हेटेरो एटम है, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के होंगे उनकी एनर्जी कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल नहीं होगी अब, क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दे आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, मतलब उसकी एनर्जी कम होती है। तो उसी हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। 1s तो के को छोड़ दो। इसका 2s आप यहां ड्रॉ करोगे तो ऑक्सीजन का 2s थोड़ा सा नीचे, सिर्फ ड्रॉ करते समय, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ऐसे इसका 2p करो यहां 2p, तो इसका 2p थोड़ा सा इसके नीचे, बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी सीक्वेंस इसमें ऑक्सीजन वाला ही फॉलो होगा। तो मैं ऑर्बिटल बना देता हूं, देखना इसमें क्या एक्सेप्शन है। ये तो हो गया आपका सिग्मा 2s, इसको तो ऐसे इसके साथ जोड़ दें, ये रहेगा दोनों से नीचे। इसका जो बनेगा ऑक्सीजन वाला पोर्शन होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे आ जाता है सिग्मा 2pz,
यहाँ पे आ जाता है पाई 2p(x) और पाई 2py। ऊपर जाएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर रहेगा सिग्मा स्टार 2pz। चलो इनको भी हम ऐसे करके जोड़ देते हैं। क्या आप बना के देखोगे कॉपी पे, है ना? ये हो गया। अब इसका जो सिग्मा स्टार 2 ऐसा वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है भाई, यही इसमें एक्सेप्शन है। ऊपर चली जाती है उसकी एनर्जी, रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है कि उसकी एनर्जी जो ऊपर चली, एक्सेप्शनली बिहेव करता है ये। इसके प्रूफ में काफी एक्स्ट्रा क्रिस्टलाइजेशन काफी कुछ है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ इसको ऐसे ही याद रखना है कि सीओ के केस में स्ट्रक्चर ये बनता है। सबसे ऊपर जो ऑर्बिटल है वो सिग्मा स्टार 2s। अब हम इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो ये 2 यहाँ और यहाँ आ जाएंगे। इसमें है हमारे पास कार्बन के 2 ही हैं, ऑक्सीजन के हमारे पास है 6, 4 और 2 6 हो गए, तो 6 इसमें फिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम देखें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 0, तो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका आ जाएगा, देखिए सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 6 - 0/2 3, मतलब सीओ में 3 बॉन्ड है। ऐसे ये हमने बना के रखी पहले से, अगर हम बनाई हुई है। यूएस डॉट स्ट्रक्चर में भी सीओ की डायग्राम ड्रॉ की थी। अब जब सीओ पॉजिटिव होगा ये, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां से, है ना, जाएगा एंटी बॉन्डिंग में से जाएगा इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में आप टोटल काउंट करेंगे हम, है ना, 2 ये और 6 8, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये 3.5 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में से रिमूव होगा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है? क्योंकि सीओ को जब सीओ पॉजिटिव में चेंज होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज टू बी लूज। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? सिग्मा स्टार 2s का। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो एंटी बॉन्डिंग में 1 कम हो गया, बॉन्डिंग में 2 और 6 8, एंटी बॉन्डिंग में 1 ही है, तो 8 - 1 7/2 3.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। तो बस इसको ध्यान में रखना है। तो ये जो सीओ ग्रुप है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, अगर +2 में भी काम आएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सिग्मा स्टार 2s वाले, और मेटल से इलेक्ट्रॉन सेप्ट भी करेगा। सेप्ट करके कहाँ रखेगा? आपके पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर कि जब सीओ पॉजिटिव में चेंज होता है तो किस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन लूज होता है। इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड डू द प्रॉब्लम साइड बाय साइड। मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड की है, उसमें से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो पहले एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, उसके बाद उसमें से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते जाओ। अब इसमें से कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे डायपोल मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।